I'll start sharing screen. Okay, so today we will start with second chapter of CS2, that is instruction set and programming of 8085 microprocessor. So this is your biggest chapter, and in this you will learn about 8085 programming. First, for that we should know first the language. Okay, instruction set, it is machine independent. Here we will do assembly language programming. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज मशीन डिपेंडेंट मीन्स जो भी हम लिखेंगे प्रोग्राम वो सिर्फ 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे ही रन होगा. For that we should learn its language, and that language it is in the form of instruction set. So we have total 74 instructions. So we will do each and every instruction. We will see what is the function of each instruction, how we can use that particular instruction in our programming, and after that we will start basic or small programs of 8085 microprocessor. तो आपका जो प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. तो इफ you are able to do this chapter properly, if you are able to learn all the instruction properly, then your 50 marks programming जो है प्रैक्टिकल वो भी बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं. तो अच्छे से करो ये वाला चैप्टर. तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट कि जो 74 इंस्ट्रक्शंस है, हाउ वी कैन क्लासीफाई all 74 instruction को we will divide in a particular group. मतलब we can define instruction that this instruction belongs to this group. So first you are now familiar with the word instruction. So what is instruction? Instruction is basically used to perform a particular operation. Like what is program? As you know what is program, it is set of instruction. So what is set of instruction which is performing one sub operation. So program क्या है? It is a set of instruction where all the instructions should be written in a sequential manner, and they will execute, all the instruction will execute in sequence, means one after another. तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो it is just like a step to perform the sub operation of that program. Okay, जैसे addition of two numbers है. So what are the different instructions that add, take two numbers, then second step add that number, and third step to display that number, right? So add, take two number is one instruction, then add two number is second instruction, then display third number is third instruction. So this way you have group of instruction to perform a particular task, and that is called a program. Okay, so in 8085 microprocessor, since we have 74 instruction, so we can classify all the instruction based on these three concepts. What are those concepts? We can classify instruction based on length, and we can classify instruction based on their addressing mode, and the third way to based on function. तो यही बोर्ड में बहुत important question है, कहीं पर आता है how to classify instructions based on length, how to classify instruction based on addressing mode, या how to classify instruction based on function. So we will take one by one. First we will take how to classify instruction based on length. So in this, what we have to do, see, this is how you classify instruction based on length, right? Based on length we are classifying instruction. So when we are classifying instruction based on length, we have three types of instruction: 1 byte instruction, 2 byte instruction, and 3 byte instruction. Length का क्या मतलब है कि how many memory location it is taking to store the instruction. Understood? 1 byte मतलब
बाइट मतलब कितना हुआ, 1 8 बिट, राइट। एंड एवरी मेमोरी लोकेशन, हमें पता है हमारी मेमोरी लोकेशन, लेट्स से दिस इज एड्रेस C000, ठीक है। दिस इज वन लोकेशन, in this one location we can store how many bits, we can store 8 bit or 1 byte, राइट। तो मतलब अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो it will take only one memory location to store full instruction, right? ऐसे ही when you have 2 byte instruction, तो 2 byte instruction का means it will take 2 consecutive memory location to store instruction, ठीक है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो 2 बाइट्स होती है, वो 2 मेमोरी लोकेशन, 2 बाइट्स मीन 16 बिट, तो 8 बिट फर्स्ट में स्टोर हो जाएंगे और 8 बिट सेकेंड में स्टोर हो जाएंगे। सी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे देन इट इज वेरी मच clear to you that this instruction belongs to which group of based on length वाइज, कि वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट है, 3 बाइट है। तो आपको इंस्ट्रक्शन देखते ही पहचान में आना चाहिए कि ओके दिस इज द इंस्ट्रक्शन एंड दिस शुड बी, दिस विल टेक ओनली 1 बाइट और 2 बाइट और 3 बाइट, इससे ज़्यादा नहीं लेते। 3 बाइट में मीन्स यू नीड 3 consecutive लोकेशन टू स्टोर दैट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट मतलब 16 प्लस 1 more byte, 24 bit you are going to store. So this is the meaning that हर एक इंस्ट्रक्शन, whether any instruction out of 74, वो कोई ना कोई स्टोरेज के कैटेगरी में आएगी, या तो 1 बाइट होगी, या वो 2 बाइट होगी, या वो 3 बाइट होगी। तो अब आप उसको कैसे पहचानेंगे, उसका भी मैं आपको एक टिप बता सकती हूँ कि आप देखते ही पहचान सकते हो कि ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट है, 2 बाइट है या 3 बाइट है। तो देखते हैं अभी कैसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं हमारे। Okay, so this is 1 byte instruction. 1 byte instruction, as I told you, that it will take only one memory location. So 1 byte means this required only 1 byte to store in memory or one memory location. तो 1 byte के अंदर ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों होता है। इसका क्या मतलब है, एक इंस्ट्रक्शन है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जब हम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो व्हाट डज इट मीन्स, इट हैज मेनी मशीन साइकिल्स, ओके। मैक्सिमम वी हैव टोटल 8 मशीन साइकिल, तो हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 से 5 मशीन साइकिल्स होती है। और मैंने ये भी बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, which will store the first byte of the instruction, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन अगर 1 बाइट की है, तो फर्स्ट बाइट में हमेशा कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, वेदर इट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज 2 बाइट और वेदर इट इज 3 बाइट, उसका जो फर्स्ट बाइट होता है उसमें उसका ऑपरेशनल कोड होता है, फंक्शन होता है, दैट इज opcode of the instruction, clear। But if instruction itself is 1 byte, then it can have both the things, opcode and operand, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सब चीजें होंगी ना, fetch, decode, execute, तो एग्जीक्यूट करने के लिए we need data, तो डेटा भी जो है that operand is also stored along with opcode, अंडरस्टूड। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में आपका ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही मेमोरी लोकेशन में एक साथ स्टोर होता है। अब आप उसको पहचानेंगे कैसे, आप ये इंस्ट्रक्शंस देखो, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत न्यू है, ओके। तो आई एम टेकिंग दिस फेमिलियर इंस्ट्रक्शन ऐड बी, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है। Add B means I am adding the content of register B with the content of accumulator and final result will store in accumulator, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो इसमें सब रजिस्टर्स ही यूज हुए हैं,
तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस वेयर यू हैव ओनली रजिस्टर, means source is registered, destination is registered. Here I am adding two numbers, so the numbers are stored in register. After adding, it is stored in accumulator. The destination is also accumulator. Just see this. This is also very simple and very first instruction in your instruction set. That is move. Means you are moving the data from one register to another. Means you are moving the data from source to destination. So here B is your source register, A is your destination register. So you are storing data from register B to A. Means आप B का data A में store कर रहे हो without changing the content of B. Means transfer कर रहे हो data. तो अब अगर आप इस इंस्ट्रक्शन में देखोगे तो इसमें भी हमारा काम किस पे हो रहा है, वेयर इज योर डेटा, डेटा इज इन रजिस्टर्स. ओके, तो ये एक ट्रिक है और ये टिप है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इंस्ट्रक्शन विल टेक 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट. तो 1 बाइट के लिए आपको ध्यान रखना है कि 1 बाइट वाले इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ रजिस्टर्स दिखेंगे या सिर्फ इंस्ट्रक्शन. जैसे अभी ये एग्जारे इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है टू परफॉर्म एक्सॉर ऑपरेशन. ठीक है, तो एग्जारे में एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है बी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर पे. ओके, ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शन यूज फॉर रोटेट, rotate the content of accumulator to left side. So here in each and every instruction, if you can see, all are having registers, and if it is not mentioned then it is a part of accumulator, वो हम addressing note में करेंगे. तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन जिसमें सिर्फ रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, डेटा नहीं दिख रहा, कोई नंबर नहीं दिख रहा, वो सब इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं? ऑल आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट जो तीनों चीजें हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, यही मेन आपका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कि हाउ यू आर क्लासिफाइंग योर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लेंथ, बेस्ड ऑन function and based on addressing mode. 1 byte is clear. 1 byte इंस्ट्रक्शन कैसी होती है? जो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाती है, जिसमें ऑपकोड और ऑपरेंड एक ही बाइट में स्टोर होता है, और जितने भी इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको सिर्फ रजिस्टर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, जस्ट लाइक इन RLC, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन एक बाइट मेमोरी लोकेशन लेते हैं. क्लियर? अब देखते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे होती है. इन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन मींस इट विल टेक 2 मेमोरी लोकेशन. तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर होता है? ऑलवेज फर्स्ट बाइट इज ऑपकोड, whether it is 1 byte, 2 byte or 3 byte. So first byte will be your opcode and second byte will be your data. और data कैसा होगा? 1 byte. Clear? 8-bit data, right? 8-bit data और 1 byte data. Clear? तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन इट विल टेक 2 मेमोरी लोकेशन. तो फर्स्ट बाइट विल गिव ऑपकोड and the second byte gives operand, which is generally of 8-bit data. तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को आप कैसे पहचानोगे? जैसे आप ये इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन इंस्ट्रक्शन. अभी आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस नए दिख रहे होंगे, बट 5-6 क्लासेस के बाद यू आर वेरी मच फेमिलियर टू दिस इंस्ट्रक्शन. जब आप इनको प्रोग्राम्स में यूज करने लगोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे और आपको यूज करना भी आ जाएगा. तो अभी ये इंस्ट्रक्शन क्या है? ADI 07. ADI stands for add immediate. 07 is your data. तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि यू आर एडिंग 2 नंबर्स. एक तो नंबर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया और दूसरा नंबर एक्यूमुलेटर में है. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है. इट कैन बी इन रजिस्टर, जो हमने पहले इंस्ट्रक्शन में देखा, ऐड भी.
तो मतलब डेटा दोनों रजिस्टर में है। और इट कैन बी डायरेक्टली फ्रॉम इनपुट, तो जब आप इनपुट से ले रहे हो तो आपको डायरेक्टली डेटा इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज डेटा इज देयर इन द इंस्ट्रक्शन। तो ADI 07 का मतलब है यू आर एडिंग टू नंबर, उसमें से एक नंबर 07 है जो इंस्ट्रक्शन में ही है और दूसरा नंबर एक्यूमुलेटर में है। आपने ऐड बी में भी देखा होगा तो एक्यूमुलेटर नहीं मेंशन करते, तो उसका अंडरस्टूड होता है कि बी मतलब दूसरा नंबर और ए में पहला नंबर। सेम हियर इन दिस केस 07 is your second number and accumulator is your first number, and after addition you are storing data in accumulator. तो ये इस तरह से इंस्ट्रक्शन हो जाती है that you are adding 07 with the content of accumulator, ठीक है, and final result will store in accumulator. इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन बनती है। एड बी में क्या था, यू आर एडिंग द कंटेंट ऑफ बी एंड ए, हियर यू आर एडिंग द कंटेंट, डेटा इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स क्यों है? 2 बाइट्स इसलिए है क्योंकि ये खुद ही एक तो 1 बाइट हो गया, तो पूरा एक लोकेशन तो इसी को चाहिए। और एडीआई का जो हेक्स कोड है वो हम टेबल में से ढूंढेंगे, जो भी जो दैट इज आल्सो 1 बाइट, तो वी नीड 2 बाइट्स। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, जैसे अभी मुझे यही इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है, C00 इज माय मेमोरी लोकेशन। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये मेरी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है, तो मैंने यहाँ पर क्या स्टोर करना है, ADI का हेक्स कोड जो मेरे को टेबल में से मिलेगा। वी विल हैव दैट टेबल, यू कैन सर्च सुपेकर, जिसके पास है वो पेज नंबर 305 या 306 पे है टेबल, और नहीं तो आपको मैं शेयर भी कर सकती हूँ, और यू कैन सर्च नेट पे भी, यू विल गेट हेक्स कोड टेबल। तो आप जैसे C00 में इसका हेक्स कोड टेबल में से सर्च करोगे, लेट्स से 27, ठीक है, तो 27 यहाँ स्टोर होगा, और C001 में क्या स्टोर करोगे आप, C001 में यू विल स्टोर डेटा, इस तरह से, ठीक है। तो दिस दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग 2 बाइट मेमोरी लोकेशन, और इट इज कॉल्ड 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। व्हाई? बिकॉज डेटा इटसेल्फ इज 1 बाइट, तो वो सेकंड लोकेशन में स्टोर होगा और फर्स्ट लोकेशन पे हमेशा ऑपकोड स्टोर होता है। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही MVI का क्या मतलब है, मूव इमीडिएट। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये जो डेटा है 08, आप इसको बी में स्टोर कर रहे हो। मूव का मतलब है इट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग डेटा, ओके। तो मूव इमीडिएट मीन्स द डेटा इज अवेलेबल इमीडिएट टू इंस्ट्रक्शन, और दैट यू आर स्टोरिंग इन रजिस्टर बी। तो इसमें भी आप MVI का कोड कहाँ से देखोगे, दैट फ्रॉम टेबल, that will store in this first location, and 08 will store in second location. And this instruction is called subtract immediate. So means you are subtracting 20 from accumulator content, and final result will store in accumulator. So this is also 2 byte. तो इसमें जो SUI का कोड है वो आप टेबल से ढूंढोगे, and then 20 will store in second location. I think it is clear to everyone. तो इसीलिए इसको 2 मेमोरी लोकेशन लगते हैं। और इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इन इंस्ट्रक्शन में हमेशा 2 डिजिट नंबर आपको मिलेगा। जहाँ भी आपको 2 डिजिट नंबर मतलब 8 बिट नंबर या 1 बाइट डेटा मिलता है, 2 डिजिट नंबर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जहाँ आपको 2 डिजिट नंबर दिखे वो आपका क्या है, इट इज 1 minute. So it is your 2 byte इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका 2 मेमोरी लोकेशन ले लेगा। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट लोकेशन था
फर्स्ट जो डेटा था हमारा, फर्स्ट बाइट मेमोरी था, वो क्यों एक ही में स्टोर हो जाता है? Nobody asks this question, why opcode and operand is in one? Because these registers are the part of your माइक्रो प्रोसेसर, ये चिप के ऊपर ही है, सीपीयू में ही है। तो इसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल के लिए, मतलब उनको कुछ बाहर से रीडिंग नहीं करना है, मेमोरी रीड नहीं करना है, इनपुट आउटपुट रीड नहीं करना है। तो एवरीथिंग इज विद रजिस्टर, एंड रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसीलिए ऑपकोड और ऑपरेंड जो है एक बाइट में हो जाते हैं। बट यहाँ पर जब आप 2 बाइट लेते हो तो सेकेंड बाइट यू आर टेकिंग फ्रॉम इनपुट, तो यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर गेटिंग दैट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, तो इसीलिए इसको 2 बाइट्स लगते हैं। ऐसे ही वी हैव 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, as we have already discussed, 3 byte instruction means it will take 3 memory location. तो first byte हमेशा क्या होगा? opcode, and second byte क्या होगा? आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा, और हायर ऑर्डर एड्रेस। मैंने ये भी बताया था कि कई बार हमें 16 बिट डेटा स्टोर करना पड़ता है और 16 बिट हमारा एड्रेस भी होता है। तो sometimes we need to store addresses also, and sometimes when we, let's say when we are adding two 8-bit numbers, but the numbers are large, so they will generate carry. So carry also we need to store along with that 8-bit operation. So to store carry I need one more memory location to store. It is there in carry flag, but if I want to show, then I need one memory location to store or to show the content of carry. So that is you need 16 bit. It can be your data और इट कैन बी योर एड्रेस। तो एड्रेस अगर 16 बिट है तो कितने डिजिट हो जाते हैं? अभी हमने एड्रेसेस देखे ही हैं, C000, ये हमारा मेमोरी लोकेशन है जहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने मेमोरी मैपिंग बताई थी आपको। हमारे टोटल लोकेशंस कितने हैं? इट इज फ्रॉम 000 टू लास्ट लोकेशन। व्हाट इज योर लास्ट लोकेशन? FFFF। ठीक है, तो ये सारे जो लोकेशन है दैट इज योर 64 KB। आपकी जो 16 बिट एड्रेस के अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द एड्रेसेस ना। तो वी हैव टोटल 64 KB memory. Capacity of memory is this, because of our address bus is 16. So 2 raised to the power 16, we are getting 65,536. So if I start from 0 to 65535, so when you convert into hexadecimal you are getting this address ranges. तो जिसमें से 0002 कितना मैंने बताया था? BFF। ठीक है, ये जो मेमोरी है वो हम यूज नहीं करते बिकॉज दिस इज अंडर program memory, or we can say ROM area. This is your program memory which we call PM or ROM. Okay, और ये जो मेमोरी है हमारी, इसके बाद BFF के बाद if you increment तो you are getting this location C000। तो ये जो रेंज है फ्रॉम C00 to FFF, this range is your user memory, means your memory or RAM, where you can write or store your program. Understood? ठीक है, तो ये जो है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब इट विल टेक 3 मेमोरी लोकेशन। तो C000 एक मेमोरी लोकेशन, C001 दो मेमोरी लोकेशन, एंड C002 it is your third memory location, right? ठीक है, C002 is your third memory, means you need consecutive 3 memory location to store such type of instruction. तो अब ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो, ये इंस्ट्रक्शन क्या है? अभी इतना समझेंगे इंस्ट्रक्शन को, अगर नहीं भी समझ आ रहा है देन ऑल्सो इट इज ओके, वी विल डू ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन विद एग्जाम्पल। बट अभी ये इंस्ट्रक्शन का मतलब मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। इसका मतलब है कि ये जो एड्रेस है, एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, C050 इज द एड्रेस। इस पे जो डेटा स्टोर है, यहाँ पे एक लोकेशन है C050,
यहाँ पे कुछ तो डेटा अगर स्टोर है, लेट्स से 10 स्टोर है, ठीक है, तो वो जो डेटा है दैट विल ट्रांसफर इनटू एक्यूमुलेटर। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, राइट। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पे जो डेटा है दैट विल ट्रांसफर इनटू एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ये है। तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो वी विल स्टोर इन मेमोरी लोकेशन। तो हाउ इट विल स्टोर, तो अब यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि जहाँ पर आपको 4 डिजिट नंबर मिल रहा है तो उसको 3 बाइट रखते हैं, ये ट्रिक है। अगर रजिस्टर्स है आपके इंस्ट्रक्शन में सारे तो ये 1 बाइट लेंगे, एक मेमोरी लोकेशन लेंगे। बट आपके रजिस्टर में सॉरी आपके इंस्ट्रक्शन में अगर 2 डिजिट नंबर कहीं दिख रहा है तो वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है एंड दैट इंस्ट्रक्शन विल टेक 2 मेमोरी लोकेशन। क्लियर। और अगर आपके इंस्ट्रक्शन में 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स दिख रहे हैं तो इट मींस इट इज एन एड्रेस। तो एड्रेस खुद ही 16 बिट का है तो वो खुद ही 2 बाइट्स ले लेगा। तो एक बाइट और भी तो चाहिए फिर आउटपुट स्टोर करने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग 3 बाइट्स। तो एलडीए का जो कोड है वो आप कहाँ से ढूंढोगे, टेबल से। लेट्स से उसका कोड 32 है तो 32 फर्स्ट बाइट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा सेकेंड बाइट में क्या स्टोर होना चाहिए, लोअर ऑर्डर बाइट। अब ये जो C050 है इसमें C0 इज योर हायर ऑर्डर बाइट एंड 50 इज योर लोअर ऑर्डर बाइट, ठीक है। 2 बाइट्स है ना, तो ये बड़ा बाइट है, हायर बाइट है, और ये लोअर बाइट है। तो लोअर बाइट विल गो फर्स्ट, ठीक है। 50 will go first and then third byte में you have to store higher order byte, then C0 will go in third byte. अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हो। तो जब हम किट पे वर्क करेंगे तो हमें ये नहीं चाहिए होते निमोनिक्स, हमें तो सिर्फ ये दोनों चीजें चाहिए कि C00 मेमोरी लोकेशन एंटर करो एंड देन उसके सामने डेटा फील्ड में यू एंटर 32 एंड नेक्स्ट इंक्रीमेंट करो C001 पे जाओ। और इन 3 लोकेशन को देख के हम पहचान सकते हैं कि दिस इज दिस इंस्ट्रक्शन LDA C050। तो इससे पता चल रहा है कि वी आर ट्रांसफरिंग द कंटेंट ऑफ C050 into accumulator। I think it is little bit clear to you। बहुत न्यू टॉपिक है बट इतने टफ नहीं है कि वी कैन नॉट डू, वेरी इजी। थोड़ा सा आपको साथ साथ पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी विद दिस टॉपिक। अभी इन पाइल अप नहीं करना, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको भी पढ़ो, ओके। तो आई थिंक इट इज क्लियर। 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, तो ये आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है कि हाउ यू आर क्लासीफाई इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लेंथ, ओके। सो बेस्ड ऑन लेंथ वी हैव three ways, or we can classify based on length. So we have 3 types of instruction: 1 byte, 2 byte and 3 byte. So in 1 byte we will have opcode and operand in 1 byte only. तो इसका टिप क्या है कि आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ आपको क्या दिखेंगे, यू विल एबल टू सी ओनली registers, or if register is not mentioned means you are working something with accumulator, राइट। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को देखते ही आप पहचान जाओ कि ये इंस्ट्रक्शन एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाती है। फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन 2 बाइट। तो 2 बाइट में किस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी, जहां पर आपको इस तरह से 2 डिजिट नंबर अगर दिखता है तो दैट इंस्ट्रक्शन इज योर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। मीन्स फर्स्ट बाइट इज योर ऑपकोड एंड द सेकेंड बाइट इज योर ऑपरेंड, ओके। तो पहला हम ये जैसे MVIB, इसका कोड हम टेबल में से ढूंढेंगे एंड वी विल स्टोर इन फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, और 08 को हम सेकंड, मतलब एक पूरी इंस्ट्रक्शन के लिए हम 2 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन योर
फर्स्ट बाइट इज ऑफकोर्स, सेकेंड बाइट इज लोअर ऑर्डर बाइट। ये ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट्स ये रॉन्ग कर देते हैं। C0 पहले सेकेंड बाइट में डाल देते हैं और 50 थर्ड लोकेशन पे, तो योर प्रोग्राम विल नॉट मूव। तो वो कंसिडर करेगा 50C0 इंस्ट्रक्शन लोकेशन, तो 50C0 इज नॉट एक्सेसिबल और वो रॉन्ग हो जाएगा। हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो C050 है। तो फर्स्ट बाइट इज योर ऑपकोड, second byte is your lower order address, and third byte is your higher order address. So this is your one question. तो इसके आपको एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं। और मैंने ट्रिक आपको बता दी, जहाँ आपको 4 डिजिट नंबर दिख रहा है दैट इज योर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 डिजिट नंबर दिख रहा है दैट इज योर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। और जहाँ सिर्फ रजिस्टर्स दिख रहे हैं दैट इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो 74 इंस्ट्रक्शंस में जब आप प्रोग्राम में यूज करोगे तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे कितने मेमोरी लोकेशन हर इंस्ट्रक्शन को देने हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग इज बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। Any doubt? If anyone has doubt in this, so you can ask. Otherwise, I'll start with addressing mode. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll start with next topic, that is uh, how to classify instruction based on addressing mode. So you should be very much clear what is addressing mode. Addressing mode is basically where is your data. It is basically to specify uh, the operand. It is the way to specify the operand. ऑपरेंड मीन्स योर डेटा, कि वेयर इज योर डेटा। देखो हमारी 3 ही लोकेशंस हैं, एरियाज हैं जहाँ से हमें डेटा मिलता है। पहला, आपका डेटा या तो रजिस्टर में स्टोर है, ठीक है। दूसरा, आपका डेटा मेमोरी में है, किसी लोकेशन पे स्टोर है। और थर्ड, आप डेटा डायरेक्टली इनपुट से ले रहे हैं। तो डेटा आपको 3 जगह से मिलता है। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है? इट इज बेसिकली it is a way to specify the operand कि where is your data। ठीक है, तो डेटा आपका 8 बिट भी हो सकता है, डेटा आपका 16 बिट भी हो सकता है। ये मेमोरी लोकेशन में भी स्टोर हो सकता है, ये रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है, और ये डायरेक्टली आप इनपुट से भी ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन वेयर इज योर डेटा, देखो आप जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस। Addressing mode of a microprocessor is the various format of specifying an operand or the way in which operand is specified in the instruction. So operand can be data 16 or 8 bit, or it can be any address, मतलब ये डेटा आप डायरेक्टली इनपुट से ले रहे हो। इट कैन बी एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जहाँ पे डेटा स्टोर है, और इट कैन बी रजिस्टर्ड और कोई रजिस्टर जहाँ पे डेटा स्टोर है। तो मैंने वही चीज़ें आपको बताई कि डेटा आपका मेमोरी लोकेशन में होगा तो आपको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मिलेगा। स्पेसिफाई कर रहे हो ना, वेयर इज योर ऑपरेंट, ऑपरेंट इज इन मेमोरी, तो कहाँ कैसे पता चलेगा? जब आपको उसका लोकेशन होगा, एड्रेस होगा। एंड डेटा इज इन रजिस्टर, तो विच रजिस्टर, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है। Data is directly given in the instruction means you are directly getting from input. So data can be 8 bit or 16 bit. Clear? अभी तो based on where is your data, we have 5 different method or different addressing mode. ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब इसमें मैं आपको डायरेक्टली एक इमीडिएट बता दूं तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इस मतलब ये दोनों एड्रेसिंग मोड क्या बताते हैं कि डेटा रजिस्टर में है, इसमें कोई भी रजिस्टर और स्पेशली ये सिर्फ एक्यूमुलेट। क्लियर?
तो ये फर्स्ट एड्रेसिंग मोड, सिंपली आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफ, विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास ओनली। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ये फर्स्ट और फिफ्थ जो है ये बताता है कि डेटा जो है रजिस्टर में, राइट। इमीडिएट एड्रेसिंग बताता है कि डायरेक्ट डेटा वी आर टेकिंग फ्रॉम इन, ओके। एंड ये दोनों जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये बताता है डेटा जो है वो मेमोरी में, क्लियर। तो ये तीन लोकेशन हो गए, ये कोई भी रजिस्टर और ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और ये जो है इमीडिएट मतलब इनपुट, और ये दोनों एड्रेसिंग मोड बताते हैं मेमोरी में, बट दे हैव डिफरेंट वे टू एक्सेस डेटा। डायरेक्टली मीन्स एड्रेस इज गिवन, indirectly means address is given in register and from there we are accessing the content, clear। तो नेक्स्ट इन क्लास ओनली आई स्टार्ट, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही, बिग टॉपिक है तो ये थोड़ा सा